They say comedy is the last honest art form. It's where we say the things we aren't supposed to, push boundaries and make people laugh while secretly making them think. And in the world of Indian stand-ups, where accents, aunties and immigration jokes reign supreme, Comic Karma is leading the charge. Joining me today are the masterminds behind Comic Karma, Jitin Nautiyal, the founder and fearless leader of Hindi stand-up in the US, co-founders Vivek Gupta, who practices clean comedy, and Neha Mahajan, who balances punchlines with activism. Whether it's family-friendly humor, raw and unfiltered storytelling, or jokes about NRIs navigating life in America, there's one thing we all agree on: laughter is universal. So guys, welcome to ITV Gold. Thank you, Nidhi. That was a stupendous introduction. Thank you. Thank you. Thank you, Nidhi. Okay, was that a good icebreaker? Are you guys warmed up to what's coming on next? Yeah, absolutely. Absolutely. Okay. Jitin, starting with you. Comic Karma has taken Hindi stand-up mainstream in the US. Hindi comedy often leans unfiltered. How do you decide how far to push the language, especially for an audience that grew up with both Bollywood humor and Western sensibilities? Well, see, it's very simple, right? When you start with, you come from the same background. I grew up with Bollywood movies and the Western, little bit of tadka here and there. Now, it all started when I started opening for these Indian comics who were touring America. जब वो यहाँ पर आते थे, उनके साथ हम tour करते थे, तब लगा यार लोगों को हिंदी समझ में आती है. लोग यहाँ पे अगर किसी एक बड़े artist के लिए, you see like 3,000 people turning up, there is a market, right? And Hindi being a very neutral language, people, even if they don't speak, they can understand, and they can understand the humor. So we thought like maybe there is a market, and let's start something like that. Because one thing which was missing in most of the people who were traveling to US, जो Indian comic store थे, वो Indian perspective यहाँ पर लेकर आते थे, right? So you have to go back, you have to adjust your thinking to align with that mindset. उन्हें ये नहीं पता कि Costco में पिज़्ज़ा कितने का मिलता है. Correct. तो वो चीज़ यहाँ पे रहने वाला ही जान सकता है. So that was the gap which we realized. So were you co-writing their scripts, or were you just doing the opening acts? I was doing the opening acts, yes. Who all did you do that? I started with Amit Tandon. There was Bassi. You've done for Bassi as well? Yeah, Bassi, Abhishek Upmanyu, Wow. Akash Gupta. Yeah, I mean, these are some of the good. How was it, like the learning experience or interacting with them? I think Amit Tandon is pretty good actually. He's pretty humble, pretty decent guy. He gives you enough inputs, suggestions. Bassi is pretty fun. I mean, this is before he became a big star. I didn't see much change after that, but अभी भी मिलते हैं तो अच्छा रहता है. Very nice. Vivek, you are proving that comedy doesn't need to be explicit to be hilarious. Do you feel like you are swimming against the tide when a lot of stand-up today is all about pushing the boundaries with the language? देखिए, ये आपकी अपनी सोच होती है कि आप किस चीज़ को कैसे सोचते हैं. कॉमेडी बहुत ही आसान तरीके से भी लाई जा सकती है, एक टोन चेंज करके. एकदम से मैं अपने पापा की आवाज़ में बोलने लग जाऊँ, बड़े इधर आ, दिस विल ब्रिंग अ लाफ्टर. ज़रूरी नहीं है, अगर उस कैरेक्टर को अगर चाहिए कोई ऐसी लैंग्वेज तभी बोलनी चाहिए, लेकिन मैं नॉर्मल लाइफ में भी वैसी लैंग्वेज नहीं बोलता, तो इसीलिए मेरे लिए बहुत आसान है स्टेज पे जाके क्लीन कॉमेडी करना, और मेरे लिए बहुत इजी रहता है वो करना. Neha, you navigate two worlds, comedy and activism. Do you ever feel pressure to censor your humor because of your platform, or do you see comedy as a tool to say the things others can't? I think it's both. It's both. I definitely feel a lot of pressure to censor what I want to say. I mean, I'm not the one to use cuss words very often, but of course, I'm from Delhi, so thoda bahut nikal jata hai मुंह से, right? You want to say that line? No. No. But yeah, I think activism is something people love to see me do. Probably not on the comedy stage yet. So I think that's where I'm drawing a line. I'm also learning. I'm very new to comedy also.
So I guess it's a very fine line in there. Now, these are just the questions anybody feel free to answer. You can take turns. So, I would say comedy often starts at home. Do you remember a joke your parents or siblings or even a school friend told you that stuck with you? हाँ, बहुत सारे. There are many. My mom used to say कि जो लोग कुछ नहीं कर पाते वो government job करते हैं. She had this kind of mentality, and then later on she changed it to like कुछ भी कर लो, अगर government job नहीं है तो तुम्हारी life बेकार है. So it was ये सब actually ये real life stories से आती हैं चीजें. And then when you get to a certain age, you realize that they were really, what makes them funny is they really believed what they said. वो मजाक नहीं कर रहे थे. And that's the funny part. Especially जो अब middle class घर जो होते हैं ना, उनके घरों में बहुत कुछ चल रहा होता है. ठीक है, एवरी टाइम. अभी आप देख भी रहे होंगे बहुत सारे Amazon, Netflix पे जो सीरीज आती हैं, the stories about the middle class families, they connect more with the audience than the the upper echelon. गरीब लोग ही ज्यादा हैं, हाँ, actually. अमेरिका में भी हैं. हाँ, middle class सब जगह है, exactly. उन्हीं के पास ह्यूमर है, कहते हैं ना, ह्यूमर comes from a dark place. आपका ह्यूमर कहाँ से आया नेहा? अब मेरे बच्चे. So I have 2 girls. Okay, and listen, I grew up in Delhi. I came here only after marriage, and I already had a kid back by then also. And मैं literally उसके साथ बड़ी हुई हूँ. I got married at a very young age, and I had a kid at a very, very young age also. So I feel like I grew up as a person while I was also behaving, learning how to be a mother, right? So I think वो जो influences है ना, स्पेशली आजकल की जनरेशन जो लैंग्वेज यूज कर रही है, स्किबिडी टॉयलेट, रिज एंड गॉड नोज व्हाट सिग्मा एनर्जी दे मीन, राइट? आई थिंक वो दैट ड्राइव्स अ लॉट ऑफ माय कंटेंट आल्सो, प्लस इमिग्रेशन, राइट? आई मीन आई सी अ लॉट ऑफ नुआंसेस अराउंड मी. हम एडिसन में बैठे हैं इस वक्त, राइट? एंड मैं लाइन मारती हूँ हमेशा कि जब मैं नई आई थी यूएस, तो मैं एडिसन पहुंची, तो मुझे लगा कि शायद मैं गलती से वापस इंडिया पहुंच गई हूँ. एंड यहाँ पहुँचते ही मुझे एक गोरा बंदा मिला, एक ही मिला क्योंकि मैं एडिसन में थी. Right? So that is something that is around us. It's very obvious, and I think that's what comedy is also. It's about observing and really talking about everyday things around us. And for you, Vivek, was there a particular joke you heard that stayed with you, or you heard it and you said, I can do probably better than this? Actually, मेरे हिसाब से कॉमेडी इज़ ऑल अबाउट रिलेटिबिलिटी. जब कोई एक बंदा स्टेज पे खड़े होकर बात करता है तो वो इकट्ठे 200 लोगों को एड्रेस कर रहा होता है. उसमें से 180 लोग मिडिल क्लास ही होते हैं, क्योंकि आपकी ज़्यादातर टिकटें एवरेज प्राइसिंग की बिकी होती है. और शुरू के 2 रोज़ होते हैं जो शायद हाई क्लास होते हैं, लेकिन वो कभी मिडिल क्लास थे, वो फ्री टिकट्स वाले, और हो सकता है कि वो पासेस वाले हों, वो स्पॉन्सर हों, वही लोग होते हैं. तो इसीलिए आपको खड़े होकर एक ऐसी लाइन बोलनी होती है जो सबके सब सेंटिमेंट को कवर करते हुए आप उसके बाद आप जो भी बात बोलोगे वो जोक में कन्वर्ट हो सकती है. जैसे जितिन ने बोला कि मिडिल क्लास में इतना मटेरियल है, मिडिल क्लास यूथ, मिडिल क्लास चाइल्डहुड. जैसे अभी हम लोग यहाँ पे हैं तो मेरी खुद 2 बेटियाँ हैं, तो अभी मेरे लिए वो टॉपिक है कि मेरी बेटी आधी इंग्लिश जानती है, आधी हिंदी जानती है. या मेरे पापा जब इंडिया से आते हैं तो वो बिल्कुल ही हिंदी में बात करना चाहते हैं. तो इतने सारी लेयर ऑफ कॉमेडी अवेलेबल है जिसको हम यूज़ करते हैं अपने सेट में. जैसे मैं आपको बता रहा था ऑफलाइन कि हम लोग वो हैं जो एवोकाडो में चाट मसाला डाल सकते हैं, जो कि एक इंडियन कॉमिक जो इंडिया से आया है शायद ना डाल पाए, क्योंकि उसको उतना पता नहीं है. तो हमारा इंस्पिरेशन चारों तरफ से रहता है, जो हमें दिख जाए. मैगी मसाला भी डाल देते हैं अगर चाइनीज चाउमीन लेके आए, या भुजिया भी. मैगी मसाला तो सब्जी हम ब्रोकली में डाल के खाते हैं, ऊपर से जब हम ग्रिल्ड ब्रोकली में ऊपर से मैगी मसाला डाल के खाओ, बहुत अच्छा लगता है. कभी ट्राई करना. I'm definitely going to try that. Every Desi comedian has their own spin on immigrant humor, be it accents, strict parents, or the never-ending struggle of explaining what is a samosa or a jalebi to Americans. Are we still laughing at the same jokes we did 10 years ago, or has the Indian-American comedy scene evolved? It has evolved a lot. See, वो सब jokes है ना, that's the stereotype. Okay, you start with that. What spin can you give it to? I mean, I used to do a lot of English shows, right? And when I'm doing English comedy shows,
I see the audience is still laughing at those arranged marriage jokes, still those the Indian culture jokes. But अभी तो वो इंडिया में भी नहीं होता, कहीं नहीं होता. But they are, I think it's more of a stereotype mindset. But जो हिंदी कॉमेडी है वो बहुत आगे निकल गई है. वो एक्चुअली उसमें सारे टॉपिक्स हैं. वो आज की डेट में स्टेरियोटाइप नहीं होता है. हाँ, when you do more clean, then you have little restrictions. तो आपको फिर भी कुछ एक टॉपिक्स हैं एंड वहाँ पे थोड़ा सा स्टेरियोटाइप वापस से हो जाता है कि घर वाले मारते थे, शादी कर दी, तो आपको थोड़े लिमिट्स में खेलना पड़ता है. आई थिंक दैट्स व्हाट आई फील. स्टैंड अप कॉमेडी एक्चुअली धीरे धीरे इवॉल्व हो रही है इंडिया सीन में या हिंदी में. तो वी कैन से कि शायद 15 साल से इंडिया में काफ़ी इवॉल्व हो रही है. लेकिन स्टैंड अप कॉमेडी अभी भी ना एक पूरे मेन्यू की तरह है. तो जो स्टार्टर्स था स्टीरियोटाइप जोक्स, उससे आप डेफिनेटली स्टार्ट कर सकते हो. लेकिन स्टार्टर एक छोटे से टाइम के लिए होता है. आपने पापड़ खाया, सिरके वाली प्याज खाई, देन मेन कोर्स अब बहुत बदल गया है. लाइक वी हैव फ्यूजन फूड अवेलेबल. तो एग्जैक्टली उसी तरीके से कॉमेडी अब पूरी बदल चुकी है. अब वो बेसिक जोक्स मिडिल क्लास से आप शुरू जरूर कर सकते हो, लेकिन अगर आप वहीं एंड करते हो तो आप स्टार्टर में ही अटक के रह जाते हो, जो कि अब रियलिटी नहीं है. अब सबको फुल कोर्स मेन्यू चाहिए, स्टार्टर भी चाहिए, मेन कोर्स भी चाहिए, बाद में डेजर्ट भी चाहिए. तो आपको अपनी राइटिंग और सिचुएशन उस तरीके से इवॉल्व करनी पड़ती है, अगर जो आप कि हम कर रहे हैं. नहीं करते तो आप शेफ जरूर बन सकते थे. आप मेरी बीवी की तरह बात कर रहे हैं. How about you? What's your take on that? I think I'm sorry, I just got lost into listening to him and his. I know, I'm suddenly hungry. See, again, दो चीज़ होती है. बहुत important चीज़ ये होती है कि it's not the matter. Matter जो मटीरियल है वो अपनी जगह है. हाँ. जब आप स्टेज पे होते हो आप एक पर्सोना और एक कैरेक्टर डेवलप करते हो. एग्जैक्टली. उस कैरेक्टर के मुंह से सुनी हुई बात भी जब दोबारा सुनोगे ना तो वो डिफरेंट टेक दिखता है. अब जैसे मेरा एक डिफरेंट कैरेक्टर है, उसमें विवेक का बिल्कुल डिफरेंट कैरेक्टर है. तो हम लोगों का टेक अरेंज मैरिज सिमिलर टॉपिक पे बिल्कुल अलग होगा. अब वो आपको स्टेरियोटाइप नहीं लगेगा क्योंकि इट्स अ कैरेक्टर हु इज सेइंग अबाउट दैट. So I think that also makes a big difference. Right. So these are the stereotypes or the cliches, as you say, Yeah. but you will always get a new take on that. Yeah. Right. Plus relatability, जैसे विवेक ने पहले बोला कि who you are as a person on that stage and the kind of persona that you're carrying on stage, उससे लोग अगर interact कर पा रहे हैं, relate कर पा रहे हैं, that's your win right there. Yeah. But is there a stereotypical joke that you guys secretly love, even though you think this should retire? Oh my Oh, god, I yes. think all the Edison jokes should retire by now. सबके पास एक ना एक जोक होता है जो स्टीरियोटाइप होता है, जो कि वो रिटायर करना चाहता है लेकिन वो करता नहीं है. आपका क्योंकि कौन सा उसको करने में बहुत मज़ा आता है. क्योंकि जब उसको लगता है कि कुछ नहीं समझ आ रहा है तो यहाँ से करता हूँ तो मुझे मज़ा आएगा. और जब एक आर्टिस्ट को स्टेज पे मज़ा आने लगता है तो फिर ऑडियंस तक वो मज़ा पास होता है और वो होता चला जाता है, वो होता चला जाता है. Okay, let's hear your stereotypical. मेरा स्टीरियो जोक्स है कि मेरे पापा बहुत ही अजीब हैं, बहुत ही कम बोलते हैं और जब भी बोलते हैं बहुत अजीब सा बोलते हैं. एक बारी वो मुंह खोल के सो रहे थे और मेरी मम्मी उनके मुंह में वैक्यूम क्लीनर का होस चला रही थी. For real? मेरे कॉमेडी इज एग्जैजरेशन. यही है. अभी क्या है ना, कॉमेडी आगे बढ़ गई है स्टीरियोटाइप से. द वे यू सेड कि फॉर रियल, बिकॉज स्टीरियोटाइपिंग थी कि पापा कम बोलते हैं. देन आई टुक इट टू अनदर लेवल सेइंग कि अब मेरी मम्मी उनके मुंह में वैक्यूम क्लीनर का होस चला रही है. देन योर माइंड सेज कि क्या फॉर रियल. दैट इज वेयर नाउ कॉमेडी हैज मूव्ड ऑन. अब वो स्टीरियोटाइप से आगे बढ़ना पड़ेगा तभी किसी को हंसी आती है. Okay, so that is Act 1 and Act 2. So where does it land? What is Act 3 of this? द एक्ट इज कि मैंने पूछा मम्मी आप ये क्या कर रहे हो. हाँ. तो मेरी मम्मी बोलती है बेटे तुम्हारे पापा बहुत कम बोलते हैं. मैंने कहा हाँ मम्मी. कह रहे बेटे 5 दिन से बोला नहीं है, इनके मुंह में जाले लग जाते हैं, मैं जाले छुटा रहा हूँ. That is how you have to take a joke from one level to another level to third level, and then it keep on moving on. You have to build your material around that. Nobody can think of कि ऐसे भी एक जोक डेवलप हो सकता है, लेकिन अब होता है. हर कॉमेडियन अब बहुत ही अच्छा लिख रहा है और बहुत ही आगे आगे कर लिख रहा है. आपका secret? Oh my god, I think it's all about life experiences, like I said before, right? For example, I had a really bad accident at the peak of COVID, okay, and I was immobile. I was on my crutches and bedridden for almost a year and a half. And I think what I have written, and I've used that dark experience in my life, to kind of create comedy. I feel that people are able to relate.
फॉर एग्जाम्पल जब मैं मेरा एक्सीडेंट कैसे हुआ, मैं जिप लाइन कर रही थी राइट एट द पीक ऑफ कोविड, सब लोग बोर हो चुके थे, मैं भी बोर हो चुकी थी, मुझे कुछ एक्साइटिंग करना था, सबको लाइफ में कुछ एक्साइटिंग करना था उस टाइम पे। और हमारे देशों में तो एक चुल होती है 40 से पहले वो बकेट लिस्ट में ख़त्म करनी होती है, तो मुझे भी करनी थी कि मुझे जिप लाइनिंग करना है। तो जिप लाइनिंग करते टाइम यू नो आई बिल्ड अप दिस एक्ट कि कैसे मैं एक पेड़ से दूसरे पेड़ टार्जन की जेन की तरह जंप मारते 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 पहुंची। एंड देन आई एम लैंडिंग एंड ट्राइंग टू लैंड, ओके, और मैं जिप लाइन पकड़ के लैंड कर रही हूँ, लेकिन लैंड करने से पहले मैं LGBTQ+ हो गई। लेग गॉट ब्रोकन टू क्विकली। हवा में आपकी टांग टूट गई? Yeah, because impact हुआ, and impact होके I came back into the air. Yeah. So yeah. So that just to even write this was a huge deal for me. They say कि best of the comics are the ones who've gone through massive trauma in their life, and that's where really good material also comes out from. And I think I've had enough life experiences like that. Wow. आपका traumatic experience that led you to write comedy? जब मैं नया US में आया था ना, मेरे मेजोरिटी ऑफ द किस्से जो हैं वो उस टाइम के हैं। तो एक किस्सा जो मेरे को बहुत अच्छी तरह मेरे जहन में है वो है कि मैं पहला दूसरा हफ्ता था मेरा, मैं अमेरिका में था और मैं होटल में था, भूख लगी और मैं गया खाना खाने, ये गाड़ी थी नहीं उस टाइम पे, तो हम बर्गर किंग गया मैं अपने दोस्त के साथ। तो जब मैं गया तो वो बर्गर किंग बंद था, उसमें कैसे ड्राइव थ्रू खुला हुआ है, तो गाड़ी तो थी नहीं। तो मैंने पहली बार ड्राइव थ्रू देखा था, तो उसमें गाड़ियाँ लगी हुई थी और पीछे मैं पैदल चल रहा था ड्राइव थ्रू में, और मैं ड्राइव थ्रू में विंडो में पहुंचा तो उसने कहा गाड़ी कहाँ है, मैंने कहा गाड़ी नहीं है, ऐसी दे दे। सो दैट बिकेम वन ऑफ द मेजर, जहाँ से मेरे को लगा है तो बहुत ही फनी स्टोरी है। फिर उसको अब अगर आप कैसे बताओगे, कैसे कैरेक्टराइज करोगे, बट दीज थिंग्स ये इंडिया में कभी नहीं होती थी, मैं ड्राइव थ्रू नहीं होता इंडिया में। तो वो सारे जो जितने भी सब किस्से या फिर बहुत ही सारे ये इंसिडेंट्स हुए, अभी तक तो मैं वहीं पे ही अटका हूँ, नए वालों पे तो मैं आया भी नहीं। अभी नए वालों में गर्ल स्काउट कुकी का मैंने कुछ लिखा है, ठीक है, वो जिनके आई मीन जैसे मैंने बोला कि जो इंडिया के कॉमिक्स आते हैं उनको नहीं पता होगा कि गर्ल स्काउट कुकीज क्या होता है, राइट, उनको नहीं पता हो सकता, बट यहाँ पे जितने पेरेंट्स हैं उनको पता है कि सबसे बड़ा स्कैम होता है ये गर्ल स्काउट कुकी। तो वो सब चीज़ें यहाँ पे रहकर यू नो जो आपके एक्सपीरियंसेस हुए हैं एज अ फर्स्ट टाइम इमिग्रेंट, राइट, वही हो सकता है। वो जो कॉमिक बाहर से आ रहे हैं वो आपको एक तरह से नॉस्टैल्जिया में ले जाते हैं कि आप किस तरह से ग्रो अप किए, आपके रिलेशनशिप्स क्या थे, आपको क्या चीज़ें पसंद थी। दे टेक यू बैक देयर टू दोज स्टोरीज, बट दे आल्सो मेक फन ऑफ अस, डोंट दे? लाइक आप यहाँ पे हैं पैसे के लिए हैं, मेरे पास ये है, वो है, मेरे पास माँ है, घर पे है, तो where's the lie? Yeah, where's the lie here? There isn't. नहीं, हमारे पास पैसा भी है, माँ भी आ जाती है हमारी चीज़, तो वो अपने को खुश करने के लिए बोलते हैं, राइट, उनसे ज़्यादा दिक्कत लगे वो अलग बात है, बट माँ जरूर आ जाती है यहाँ पे, राइट। आना वो भी चाहता है, वो आ नहीं पा रहा है। वो उनके लिए उनका स्टार्टर है, बिकॉज उससे वो तुरंत रिलेट कर लेते हैं ऑडियंस को। अगर आप बोलोगे यहाँ के कि अरे आप यहाँ अटके हो जॉब के चक्कर में, माँ तो इंडिया में है, देन एवरीबडी गोना रिलेट। तो ये उनके लिए स्टार्टर है, हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए कुछ और स्टार्टर है, क्योंकि हम ऑलरेडी यहाँ पे, हम भी यहाँ पे, आप भी यहाँ पे हो, तो हमारे लिए सेम बात है। तो अगर मैं बोलूँगा तो आपको बोलेगा तू भी तो भाई यहाँ पे ही है, एज सिंपल एज दैट। तो उनके लिए स्टार्टर है, हमारे लिए स्टार्टर कुछ और हो सकता है। तो सिचुएशन के हिसाब से हर आदमी अपनी पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन सोच के चलता है और वो सोच के बोलता है, और उसके हिसाब से ऑडियंस रिलेट करती है। फिर बैक टू द बुफे। और एक और बड़ी बात होती है, ऐसा नहीं कि वो लोग खराब, वो बहुत अच्छा करते हैं वो लोग दे आर लाइक मास्टर्स इन देयर स्किल। हम सिर्फ अलग हो जाते हैं उनसे। अगर हम भी वही टॉपिक बोलने लगेंगे ना, तो हमारे को बहुत जल्दी लेबल कर दिया जाएगा ये तो उसके जैसा बोल रहा है, क्योंकि उनका स्टेज टाइम, उनकी प्रेजेंस डिजिटल मीडिया, डिजिटल पे उनका इतना ज़्यादा, क्या कहते हैं उसको, फुटप्रिंट, उनका इतना ज़्यादा उनका डिजिटल फुटप्रिंट कि वो कहीं ना कहीं मैच हो जाएगा। वो महीने में 50 शो करते हैं, हमने पिछले 1 साल में 40 शो करे। अमेरिकन स्टैंडर्ड के हिसाब से वो भी बहुत ज़्यादा है एक्चुअली, बट उनके बहुत ज्यादा वो तो दिखते रहते हैं। See, also हम लोग सब दिल्ली से हैं, राइट? आप किसी भी रैंडम दिल्ली वालों को भी पकड़ लोगे ना, उनके बोलने का स्टाइल वही होता है, राइट? तो अगर कोई भी नॉर्थ इंडियन कॉमिक को आप पकड़ोगे, उनके बोलने का लहजा भी वही होगा, उनके बोलने का स्टाइल भी वही होगा। गालियां भी सेम निकलती हैं, डायलॉग भी वही निकलेंगे, राइट? तो फिर वो एक ना बात हो जाती है कि अरे कॉपी कर रहे हो क्या? बट दैट्स नॉट how we are. The only way we can differentiate is अगर हमारा पूरा सब्जेक्ट ही वो है जो वो कभी टच नहीं कर सकता, आपका कंटेंट डिफरेंट होएगा। कॉमेडी ऐसा आर्ट फॉर्म है जो स्टेज पे जाने से पहले भी छोटे छोटे वेन्यूज़ पे 20 सीटर पे, 40 सीटर पे
वो जोक्स परफॉर्म किए जाते हैं बड़े से बड़े आर्टिस्ट के द्वारा भी, छोटे से छोटे आर्टिस्ट के द्वारा भी। हमारे पास क्या है, यहाँ पे हम लोग हिंदी में कॉमेडी कर रहे हैं डायरेक्टली, तो हमारे पास वो जो प्रैक्टिस सेशन है वो हम अपने घरों में करते हैं, बैठ बैठ के छोटा छोटा ओपन माइक करते हैं जनरेट, आपस में 6 लोग एक दूसरे के जोक सुनते हैं, फिर हम उसको स्टेज पे लेके जाते हैं। तो हमारे पे एक हाई प्रेशर होता है, बिकॉज हमारी जो रिपीटिशंस हैं वो किसी कॉमिक जो इंडिया से आया है उससे बहुत कम बार हुई है। मे बी मैंने वो जोक 10 बार ट्राई किया और मैं फिर स्टेज पे पूरी जान लगा के सुना रहा हूँ, लेकिन उस कॉमिक ने वो जोक, क्योंकि जब वो यूएस आया है तो इंडिया में ऑलरेडी फेमस है, तो वो 50 बार इंडिया में कर चुका है और ऑल ओवर वो यूएस टूर कर रहा है, तो 20 बार वो यहाँ भी कर चुका है, तो उसका जोक 50 बार हो चुका है, हमारा जोक 10 बार हो चुका है। तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस बैठता है, लेकिन उससे ये नहीं कि हम मेहनत कम करते हैं, हम अपनी तरफ से पूरी मेहनत करते हैं और हमारे पास एक्स फैक्टर वही है जो जितिन ने बोला कि हम वो टॉपिक्स पिक कर सकते हैं जो आराम से हम रिलेट कर सकते हैं, लाइक एवोकाडो, ब्रोकली, जुकीनी, स्कूल, हम उनके टॉपिक्स पे जोक कर सकते हैं बट नॉट द अदर वे अराउंड। हाँ, टेस्ला, कॉस्को, वॉलमार्ट। हाँ, और उनका फुल टाइम प्रोफेशन है। यू गाइस आर डूइंग अदर थिंग्स आल्सो इन लाइफ, राइट? ट्रू, हम लोग हसलर्स से ऊपर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। देयर इज अ फुल टाइम जॉब, मीटिंग्स होती हैं 5-5, वो तो 2 घंटे मिलते हैं आपको जोक्स लिखने के। दिस इज मोर ऑफ अ पैशन। आपको पता है आर्टिस्ट को पैसे तो मिलते नहीं है। मैं यही पूछना चाहती हूँ। Yeah, we're really just doing it out of passion, really, because हम तो खुश हो जाते हैं यार, इस बार सिर्फ इतने ही पैसे लगे जेब से, इस बार ज्यादा नहीं लगे जेब से। तो आप लोगों को बुलाने के लिए भी उन्हें पैसे देते हैं? नहीं, जगह बुक करने के पैसे देते हैं। See, यहाँ पे हमारे पास कोई स्पॉन्सर्स नहीं आ रहे हैं कि अरे अरे तुम करो, तुम सिर्फ अपने कंटेंट पे फोकस करो, बाकी हम संभाल लेंगे। वो करें, हम चेयर्स भी लगा रहे होते हैं वेन्यू पे, हम माइक टेस्टिंग भी कर रहे होते हैं वहाँ पे जाके, साउंड सिस्टम भी खुद ही क्या लेके आ रहे होते हैं और कंटेंट भी लिख रहे होते हैं, ऑल अलॉन्ग विद डूइंग अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज अ डैड, एज अ मॉम, यू नो, yeah, and everything else that you can think of. थोड़े do's don'ts रहते हैं, जैसे I don't prefer any restaurant shows. रेस्टोरेंट बहुत डिस्टर्बेंस होती है, कई लोग लगता है अरे यार हम कर देंगे, और क्योंकि इट्स नॉट लाइक कैरियोके या म्यूजिक नहीं चल रहा है कि पीछे चलता रहेगा और आप खा पी लो। It has to be focused. ऐसा नहीं होना चाहिए आप जोक सुना रहे हो बीच में सिजलर आ रहा है। हाँ, अब जोक सुना रहे सामने सिजलर। एक्चुअली क्या है कि ना हम लोग अभी स्टार्टअप की तरह हैं, हमें 1 साल हो गया कॉमिक कर्मा के अंडर काम करते करते, तो हम स्टार्टअप की तरह हैं, तो हमें हसलर की तरह बहुत सारे हैट्स पहनने पड़ते हैं शो करने के लिए, लेकिन हमारा शो हाई क्वालिटी गया है अभी तक, तभी हम आज यहाँ बैठे हैं। इतने सारे लोगों ने हमारा शो देखा, हमेशा अप्रिसिएशन मिली है, लेकिन ठीक है थोड़ा हसल है बिकॉज स्पॉन्सर नहीं है या फिर हम फुल टाइम नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके हिसाब से हम बहुत अच्छा कर रहे हैं और जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं हम आर पार हो जाएंगे किसी भी दिन, क्योंकि आर्टिस्ट लाइन में होता यही है कि ना आप एक्सपोनेंशियली एकदम से आगे बढ़ जाते हो, बस आपको हसल कितनी करनी है किसी को नहीं पता। तो अभी तो हम हसल कर रहे हैं और बहुत खुशी से हसल कर रहे हैं। You just have to be consistent, right? That's true. हमने पिछले 1 साल में, हमें 1 साल हुआ लिटरली, 15 मार्च 2024 को हमने शुरू किया था करना इस फॉर्मेट में, और Congratulations. Thank you. And since then we have had at least a show or 2, if not almost every month. Almost every month, और हर शो में हमारे sold out रहा है हर शो, और कोई एक शो नहीं बचता। सीटर होता है आपका? द मैक्सिमम तो हमने 140 करीब भरा हुआ है, बट एट एन एवरेज लास्ट वाले में 55, आई मीन जितना रूम होगा जितनी जगह होगी उतना तो भर जाता है। 70, 80, 100 से 100 प्लस हमने 3 बार करा। इनफैक्ट एक बार हमारा शो था, देयर वाज नो स्टैंडिंग रूम, We had to turn people we away. had to turn people away, there was absolutely no standing room, मतलब जो एग्जिट का डोर था वहाँ पर लिटरली लोग खड़े हुए थे कि अच्छा हम खड़े होकर देख लेंगे शो। हमारी देसी ऑडियंस भी तो आखिरी टाइम के लिए वेट करती है ना, पता नहीं जैसी सैलरी आएगी 6 बजे, मैं 6:30 बजे टिकट खरीद लूँगा। $15 की टिकट खरीदूंगा मैं तो। 2 हफ्ते पहले कौन खरीदेगा $20 की टिकट? Jitin, Vivek, Neha, thank you for bringing us laughter, insight, and proving that whether it's clean, bold, or bilingual, comedy is all about connection. Looking forward to seeing what Comic Karma does next. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Nidhi. Done.